Sikkim continues to face the wrath of nature as heavy rainfall and landslides continue to batter the Himalayan state. The spike in water levels of the Teesta River is also quite alarming, with no let-up in rainfall. As per latest inputs coming in, the NH10 has been submerged at Rabijhora. Meanwhile, the IMD has issued a red alert amidst the torrential rains and alarming conditions in the state. The water levels of the Teesta River have once again surged, causing flooding in the Meli playground area of South Sikkim. Local authorities and residents are on high alert as the situation continues to develop. Meanwhile, several important roads have been either severely damaged or closed. Sikkim's lifeline NH10 has been blocked at several places due to landslides. Besides, as many as 17 families have been displaced due to a massive landslide in the Lungchok area of Dharamtain constituency. Fortunately, no casualties have been reported so far. As per reports, the landslide occurred at around late Friday evening. Additionally, 5 families have been temporarily relocated to safer locations. Authorities are assessing the damage and coordinating relief efforts for the affected residents. The visuals on your screens, viewers, speak for themselves. The Himalayan state has been at the receiving end since last October 1st, with glacial lake outburst and then widespread landslides triggered by heavy rains. Meanwhile, the Dikchu-Mangan road has been closed at Namokhola following landslides caused by heavy rainfall over the past few days in Sikkim and Darjeeling Hills. The region has been severely affected with multiple reports of landslides, road blockages and rising water levels of the Teesta River, leading to significant disruptions. The national highway has also been blocked, further complicating travel for commuters. Authorities have urged residents and travelers to remain vigilant and avoid unnecessary travel until the situation stabilizes. My colleague Prakash Adhikari joins us live from Gangtok at this point in time. Prakash, काफी सारे जगह में ऐसी disruptions की reports आ रहे हैं, काफी सारे जगह में landslides की reports भी आई हैं, National Highway 10 फिर से बंद declare कर दिया गया है. तो अभी फिलहाल पहले first and foremost just give us the updates of how is the situation in various parts in and around Sikkim, Prakash. जी रौनक, सिचुएशन का बात करें तो अभी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि आईएमडी ने भी अभी फिर से एक अलर्ट जारी किया है कि हेवी टू हेवी रेनफॉल सिक्किम में होगा और लास्ट 60 आवर्स से सिक्किम में रेनफॉल हो रहा है. अभी हम लोग भी बाहर नहीं निकल सकते हैं, हम लोग इंडोर अभी लाइव कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कितना अलार्मिंग सिचुएशन है. और NH10 का बात करें तो जो बंगाल के पार्ट है, बंगाल के पार्ट में 9 to 10 स्पॉट पर लैंडस्लाइड हुआ है और सिक्किम का बात करें तो सिंगताम और रंफू के बीच में लैंडस्लाइड हुआ है. तो जो NH10 है इसको खोलने में 10-15 दिन और इससे भी और ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि पहले भी ये 90 डेज बंद हुआ था, फिर उसके बाद 5 डेज बंद हुआ, अभी फिर से आज 3rd डे है बंद है. तो जो NH10 का जो प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होके उभर के आया है और ये सिक्किम के लिए एक बहुत दुखद खबर है. और दूसरी तरफ का बात करें तो अभी भी सिक्किम का जो स्टेट हाईवे है, स्टेट रोड से उसमें 90% से भी ज्यादा रोड अभी ब्लॉकेज है. जो मेन रोड है सिंगताम टू डिक्सू का रोड हो, डिक्सू टू मंगन का रोड हो, गैंगटॉक टू मंगन का रोड हो, या सिंगताम टू रंफू रोड हो, सिंगताम टू रंफू का भाया डुगा का रोड हो, जितने भी मेजर रोड है ये सभी बंद है. और सोरेंग डिस्ट्रिक्ट के दरमदीन में 20 से भी ज्यादा घर को इफेक्ट हुआ है, वहाँ के लोग हाउसलेस हुआ है, अभी उन लोग सेफर जोन पर शिफ्ट किया गया है. तो एक अलार्मिंग सिचुएशन अभी सिक्किम में हम लोग ऐसा है हम लोग बोल सकते हैं. जी बिल्कुल प्रकाश, और इन्हीं हालातों को देखते हुए सिक्किम लोकसभा MP इंद्राहंग सुब्बा ने भी ये कहा है कि अगली जो दिल्ली विजिट होगा उनका, वहां पे वो ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस इस मुद्दे को उठाएंगे इन फ्रंट ऑफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड अदर सेंट्रल लीडर्स. इसके बारे में और क्या जानकारी दे सकते हैं प्रकाश? कितनी जल्दी इंद्राहंग सुब्बा इस मुद्दे को लेके प्रचार करेंगे दिल्ली में? जी हाँ, जो सिक्किम गवर्नमेंट की ओर से बार बार यही रिक्वेस्ट है कि जो बंगाल का पार्ट जो है जो NH10 का, वो
सेंट्रल एजेंसी को देना चाहिए, इस बार बार डिमांड है। और नॉर्थ सिक्किम का बात करें तो नॉर्थ सिक्किम भी कट ऑफ है, और नॉर्थ सिक्किम में अभी सेंट्रल एजेंसी ही काम करे, बीआरओ वहां पर काम करे, मगर नॉर्थ सिक्किम भी कट ऑफ है। टूरिज्म स्टेक होल्डर का प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर है। टूरिस्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है, पूजा का सीजन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ सिक्किम को खोलने का जो प्रेशर है वो गवर्नमेंट के ऊपर है। तो इसीलिए इंद्रांग सुब्बा ने ये भी बोला है कि जो डिफेंस की पर्पज से देखे तो चाइना बॉर्डर से सटे हुए एरिया है सिक्किम, तो नॉर्थ सिक्किम को खोलना ही जरूरी है। और डिफेंस के साथ साथ यहाँ का जो पब्लिक है, पब्लिक को भी ध्यान में रखते हुए नॉर्थ सिक्किम का रोड खोलना चाहिए। और इसके लिए वो राजनाथ सिंह के साथ जो डिफेंस मिनिस्टर है वो अपनी बात रखेंगे। और ऑलरेडी उन्होंने रोड एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी को भी ये बात रख चुका है। तो राजनाथ सिंह का 8 अक्टूबर को सिक्किम में विजिट होने की बात है, तब भी वो बात रखने वाले हैं। जी, और प्रकाश, अगर हम बात करें अभी फिलहाल जो प्रेजेंट सिचुएशन है नेशनल हाईवे नंबर 10 और बाकी सारे जो वाइटल रोड्स है सिक्किम में, तो वहाँ पे रेस्टोरेशन वर्क्स कैसे चल रहा है? क्योंकि NH10 फिर से रिपोर्ट्स के मुताबिक बंद कर दिया गया है। सो रेस्टोरेशन वर्क्स कैसा चल रहा है और कब तक फिर से वापस खुलने की एक उम्मीद जताया जा सकता है? NH10 का बात करें तो बंगाल के पार्ट में 9 to 10 स्पॉट पर लैंडस्लाइड हुआ है, और 2 जगह पर सबमर्ज हुआ है। तीस्ता नदी अभी वहां पर बह के जा रहा है, तो सबमर्ज होने की वजह से बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम भी हो रहा है, और उसको फिर से मरम्मत करने में समय लगेगा। बंगाल की PWD उधर काम करे है, सिक्किम का पार्ट में तो सिक्किम का रोड एंड ब्रिजेस डिपार्टमेंट भी काम करे है। मगर जिस तरह से बारिश हो रहा है, तीस्ता रिवर का जो वाटर इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं उन लोगों को भी, मशीनरी को भी काम करने में कठिनाई हो रही है। जी प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद इन सारे जानकारियों के लिए, एंड डू कीप अस अपडेटेड ऑन ऑल फर्दर डेवलपमेंट्स।